Okay, hello everyone. Myself Mukesh Kumar Tiwari from LPM Public School. Dear student, today we will talk about for the valence bond theory in case of the coordination compound. As you all know that we already talked about for the various things like the like the hybridization and the types of the complexes in which we consider the different kind of the hybridization like the in case of coordination number 4, there are two types of the complex square planar and tetrahedral. And square planar have dsp2 hybridization and tetrahedral have sp3 hybridization. Similarly, in coordination number 6, we consider the octahedral complexes having two types of the hybridization like the d2 sp3 and sp3 d2. And the d2 sp3 hybridization is also considered as the low spin complex or inner orbital complex, and sp3d2 hybridization is also considered as the high spin complex or outer orbital complex. Clear? Now the question is that how can we identify that the complex will be or the hybridization will be d2 sp3 type or sp3d2 type. So there is a reason to know about the types of the ligand which are given in the coordination compound. That means the ligands are of two types, strong field ligand and weak field ligand. Clear? So you know the things are clear to everyone. Now today I will give some examples of the compound on the basis of the valence bond theory. First of all, we consider the compound having coordination number 4. Having coordination number 4. Clear? So look at very carefully what is the examples are given here. We will talk about for a compound like NiCl4 having 2 minus charge and NiCl4 having 2 minus charge. In both the cases, the minus ligand are different, but the center metal ion are the same. Now we can write the name of the first compound. First we talk about for the NiCl4 2 minus. Clear? So what is the name of this compound? The name of this compound will be tetrachlorido nickelate second. tetrachlorido nickelate second. क्लियर? मतलब यहाँ पे आप लोग ये देख रहे हो, हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात कर रहे हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये दो कॉम्प्लेक्स है, एक NiCl4 पर 2 माइनस और एक NiCl4 पर 2 माइनस है. हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं NiCl4 पर 2 माइनस की, जिसका नाम है टेट्राक्लोराइडो nickelate सेकेंड. ठीक है ना? तो सबसे पहली बात, सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो निकल यानी Ni है उसमें उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है. तो आप साफ साफ देख रहे हो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है. यानी जो Ni होता है, Ni का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया है +2. यानी सेंटर मेटल आयन हमारा Ni2+ है. तो सबसे पहले हम लोग Ni का कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे. Ni का होता है 28. इसका शॉर्ट में कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो आर्गन 3d8 4s2, आर्गन 3d8 4s2. वेरी गुड. 3d8 4s2 होगा. ये इसका ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन है. ठीक है ना? जब हम Ni2+ का बनाएंगे, Ni2+ का, तो ये हो जाएगा क्या, आर्गन 3d8 अब 4s खत्म हो गया क्योंकि 2+ चार्ज आ रहा है. तो ये 2+ चार्ज इसी 4s के इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो जाएगा तो 4s 0 हो जाएगा. और जब 4s 0 है तो 4p भी हम 0 दिखा सकते हैं.
ठीक है ना, 4d भी ला सकते हैं। अब आप जानते हो d में 5 होता है, तो हम 5 ऑर्बिटल बनाने जा रहे हैं d में ऐसे 1 2 3 4 5 और ये 4s है, तो 4s में एक ही होता है, तो आप एक ऑर्बिटल ऐसे बना लो, एक ऑर्बिटल। अब 4p में 3 होता है, तो यहाँ पर 3 ऑर्बिटल बना लो 1 2। अब ये देख रहे हो कि यहाँ पर 3d में कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है ना। यानी यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो होगा क्या यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा ये लिगेंड किस टाइप का है। जैसे आप देख सकते हो जो NiCl4- जो हमने लिखा हुआ है, इसमें जो लिगेंड है क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन जो है वो वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी उसके पास इतना पावर नहीं है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को पेयर अप कर सके। यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप नहीं होगा। तो जब ये पेयर अप नहीं होगा तो यहाँ पर एक खाली ऑर्बिटल या Ca हो गया, ठीक है ना, और 3p हो गया। यानी कौन सा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ये पूरे कॉम्प्लेक्स को लिख लेते हैं NiCl4 और 2- और ये आपका ये वाला तो वैसे ही जैसे है वैसे ही रख देंगे ऐसे करके, ये वाला जो है वैसे ही रख देंगे 2, ये 4, ये 6, ये 7 और ये 8, ये वैसे ही उतार देंगे। और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन S का और 3p का, यानी 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है ना। और आपको पता है एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स खाली है, तो इस 4 ऑर्बिटल्स में किसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस 4 ऑर्बिटल्स में क्लोरीन यानी क्लोराइड आयन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऐसे 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है ना। ये क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आए हुए हैं, ये जो 4 क्लोरीन है। तो इस तरीके से हमें जब ये सब हम इसका ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिख रहे हैं इस पूरे कंपाउंड का, तो हमें मिल क्या रहा है, सबसे पहली बात तो हमें हाइब्रिडाइजेशन मिल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन से टाइप का है, sp3। तो sp3 जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। यानी ये जो कंपाउंड है ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है ना। दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर इसके मैग्नेटिक बिहेवियर को देखें तो इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, यानी ये कंपाउंड क्या है, ये पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहा है, या ये कंपाउंड जो है ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है ना। दूसरी सबसे जरूरी जो बात है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करेंगे। मैग्नेटिक मूवमेंट को हम म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू इज इक्वल टू होता है n+2, ठीक है ना। तो म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा ये √2 2+2, तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू √8, ठीक है ना। अब √8 को आप लिख सकते हो 2√2, ठीक है ना। √8 को आप 2√2 लिख सकते हो,
या इसको 2 into 1.414 रूट 2 की वैल्यू 1.414 होता है, तो इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2, यानी 2.828 Vm इसका क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट आया हुआ है। तो ये हो गया पहले वाले कंपाउंड के केस में, यानी जो फर्स्ट कंपाउंड ये NiCl4 माइनस दिया गया है, ये कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, ये आपको पहले इसमें हाइब्रिडेशन sp3 टाइप का हो रहा है और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना है। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। आइए अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं जो हमारा दूसरा कंपाउंड है, दूसरा वाला जो है NiCl2 माइनस वाला, इसको हम लोग देखने जा रहे हैं। ये तो हो गया ये। अब आइए इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या कह रहा है, इसमें भी देख लेते हैं। NiCl4 माइनस ये एक कंपाउंड है। तो यहां पर अगर आप बनाओगे इसका, पहले तो नेम लिख डालो। नेम इसका क्या होगा, टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड, टेट्रा साइनाइडो निकलेट सेकेंड, ठीक है ना। तो यहां पर हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं Ni2+, यानी यहाँ पे 2+ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ भी। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो अभी जस्ट मैंने Ni का बनाया था, Ni का 28, आर्गन 3D8 4s2, ये तो Ni का है। Ni2+ का क्या हो जाएगा, Ni2+ का हो जाएगा आर्गन 3D8 और 4s0 और 4p0। तो यहाँ पर 3D8 का मतलब 3D में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 1 2 3 4 5 बना लिए। 4s में एक ऑर्बिटल है और 4p में 3 ऑर्बिटल होगा, ऐसे, ठीक है। अब 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि हम इस इलेक्ट्रॉन को जो अनपेयर्ड फॉर्म में है इसको पेयर अप करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, तो ये डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस टाइप का है। तो ये लिगेंड साइनाइड है, साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो स्ट्रॉन्ग जो होगा वो पेयरिंग करा देगा। यानी अगले स्टेप में इसको आप ऐसे लिख दोगे, इसको अगले स्टेप में मैं लिखूं Ni2+ आर्गन, ऐसे ऑर्बिटल बना रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 फिर ये और फिर लास्ट में ये, ठीक है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा, ये 2 ऐसे ही था, ये 2 ऐसे ही रहेगा। अब इसका वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर अप कर जाएगा, यानी एक तो ऐसे था, ये एक ऐसे आ गया, ये पेयर अप हो गया। पेयर अप क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर आपको मिला क्या, एक d ऑर्बिटल खाली मिल गया, एक s ऑर्बिटल खाली मिल गया और 2 p ऑर्बिटल खाली मिल गया, यानी यहाँ पे हाइब्रिडेशन कौन सा हो जाएगा कि dsp2 हाइब्रिडाइजेशन, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है ना। वहां पे sp3 था और यहाँ पे क्या हो रहा है, dsp2 है। दोनों में रीजन आपको क्लियर हो रहा होगा क्यों ऐसा है। अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो कंपाउंड है Cl का होल 4 माइनस, इसको हम क्या करेंगे, ये वाला तो हमारा ऐसे ही लिखेंगे, ये हो गया 2 2 4 2 6 और ये 2 8, ठीक है। और 1 2 3 4 ऑर्बिटल हम ऐसे बनाएंगे,
ऐसे 1 2 3 4 और इसमें किसका इलेक्ट्रॉन आएगा, इसमें साइनाइड का इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे ऐसे, इसमें हम ऐसे साइनाइड के इलेक्ट्रॉन को फील कर देंगे। ठीक है, अब आप एक चीज यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या क्या आपको यहाँ इंफॉर्मेशन मिल रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो कंपाउंड है इसमें हाइब्रिडाइजेशन DsP2 टाइप का मिला है, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन मिला है आपको DsP2 टाइप का मिला है। दूसरा, ये जो कंपाउंड है ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। और तीसरी बात ये है कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, क्योंकि ये तो अनपेयर्ड था लेकिन इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में ये पेयर अप हो गया, यानी पेयर्ड हो चुका है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायमैग्नेटिक, ये कंपाउंड हमारा डायमैग्नेटिक होगा। और जब डायमैग्नेटिक होगा तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ जीरो होगा। तो इस तरीके से अगर हमें आपको क्वेश्चंस दे दिए गए हो, अच्छा यहाँ से क्वेश्चंस क्या बनेंगे, क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जा सकते हैं, आइए थोड़ा उसकी भी बात कर लेते हैं। बोलिए, इतनी बातों में कोई दिक्कत है? नो सर। क्लियर है ये सबको? यस सर। सर थोड़ा साइड हो जाइए, स्क्रीनशॉट ले ले। जल्दी करो जल्दी। हो गया सर। ओके, अब यहां से क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा, क्वेश्चन भी समझ लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गिव रीजन NiCl4 2- is paramagnetic, clear, while NiCl4 2- is diamagnetic। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन क्लियर है सबको? ये कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है और ये डायमैग्नेटिक है, क्यों, आपको रीजन बताना है। तो रीजन तो हाइब्रिडाइजेशन है, लिगेंड है, क्लियर है सबको?